सभी को नमस्कार, pranam. We welcome you all in today's online yoga webinar. We welcome all the participants who are listening to us in the social media. And in a few moments, we will be streaming it live. The session will start in a few minutes. And before it starts, I would like to give a brief introduction of what it is all about and what we are going to do in this whole session. सभी को प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस ऑनलाइन योगा वेबिनार पे, जिसमें हम लोग मेंटल हेल्थ को फोकस कर रहे हैं। जैसे लोगों का क्रम बनता रहेगा, जुड़ते रहेंगे, हम लोग यह सेशन शुरू करेंगे। सभी से निवेदन कि आप इस सेशन को पूरी तरह से ज्वाइन करें, अच्छे से अपने जो भी नोट्स हैं उसको बनाने के लिए, प्रिपरेशन के लिए अपने पास राइटिंग पैड, पेपर जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। एंड अगेन वी वेलकम एवरीवन who is watching and who is the participant of this event, online yoga webinar. We welcome all the participants. We welcome our respected speakers who will give their knowledge, share their experiences with us. And also, we welcome all the participants from nation and the abroad. We welcome the participant who is from abroad, Lithuania, Labas Vakaras, to one and all. And some of the participants are from Turkey as well. We welcome you all also. So today's yoga webinar, we will discuss on the stress management, the mental health. And the most important thing, the few things which I would like to discuss with you all is that in today's session, we will discuss about the psychological aspect and the yoga approaches for the stress management. And the most important aspect, the most important thing which we will be sharing is the Yoga Nidra session, which will be happening tomorrow. So today, we this whole session, this whole yoga webinar is divided into two parts, day 1 and day 2. Today, in day 1, we will be discussing on the psychological aspects and yoga tools, which will help us to relieve the stress, deal with the stress in today's day-to-day life. We know the basic techniques, but what are the scientific tools? What are the best approaches we can implement on the stress management? So we have the experts who will share the experiences and knowledge with us regarding this. And apart from this, the very important thing, that is day 2, when we will be practicing and discussing the Yoga Nidra, the very aspect, the very important part of the relaxation, the management of stress. So we welcome you everyone. And in today's, I would like to introduce our speakers. Today we have with us it's a kind request to one and all who are in the kindly turn your volume, turn volume off or mute the volume so that I'm audible to you. सभी से निवेदन कि आपकी जो वॉल्यूम है उसको म्यूट कर लें ताकि जो भी स्पीकर हो उसको आप सुन सकें। तो छोटे मोटे निर्देश हैं, आप सभी से निवेदन, रिक्वेस्ट, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट दैट काइंडली म्यूट ऑल योर volume so that you can listen to the speakers who will be giving their best to manage the stress. So the speakers, I would like to introduce you to the speakers. We have 2 speakers today, and the first speaker is Mrs. Smriti Srivastav, who is a clinical psychologist, gold medalist in MSc Clinical Psychology, and who will be sharing the very psychological aspect of stress and the tools which can help us to relieve the stress. And on the other hand, we have a very well-trained
a yoga trainer, Miss Aditi Pandey, who is an international yoga trainer, and also she is a student who studied BSc in yoga and psychology, and she did her master's in psychology. So she has a combination of yoga and psychology, and she will be sharing her knowledge, the practical session, which will be very effective to practice and to know also. So she will be sharing her knowledge on the yoga tools, that which asanas, pranayams, and other tools will be helpful to release and help in stress. So, and the most important thing, that is the tomorrow's session, which is Yoga Nidra. I would like to introduce the speaker, who is a very specialist in Yoga Nidra, and he is a PhD scholar in Nepal Sanskrit University. His name is Sanjeev Kumar Yadav. You are him now on the screen, and he will be taking the session tomorrow on Yoga Nidra. So we welcome our honorable speakers on today's yoga webinar. So without any delay, I would like to request Mrs. Smriti Srivastava to take the session on from here now, and she will be discussing psychological aspects and how to deal with them. So please, Smriti, we welcome you. Thanks for being with us for today's session. I'm Smriti. I welcome you all in today's session. Before initiating the discourse on stress management, I would like all of you to please kindly, gently close your eyes just for a minute and let's enchant Gayatri Mantra together and feel the vibration of Gayatri Mantra. So let's chant it together. Please gently close your eyes. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodayat. Thank you everyone. Open your eyes gently. Now we are ready to begin the session. तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले समझने की कि साउंड हेल्थ होता क्या है. होलिस्टिक हेल्थ से हम क्या समझते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साउंड हेल्थ को और कंप्लीट हेल्थ को डिफाइन किया है. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग. इट इज नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीजेस. जनरली अवधारणा है आम जनमानस में कि अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब यही हुआ कि मैं एकदम हेल्दी हूँ, पर ऐसा नहीं होता है. अगर आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, स्टैमिना है, एंड्योरेंस है, अगर आप मेंटली कैपेबल हो हर चीज से डील करने के लिए, मेंटली हेल्दी हो, अगर आप स्पिरिचुअली एनरिच हो और सोशल वेलबींग भी आपका अच्छा है, तभी आपने अटेन किया है होलिस्टिक हेल्थ. तभी आपने समझा है हेल्थ की वैल्यू को और आप एक हेल्दी स्टेट में हो. तो कहीं पर भी अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो सॉरी, आपका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और आप हेल्दी नहीं है. तो हमें वर्क हर एक स्फीयर पर करना है. होल हेल्थ बिगिंस विथ मेंटल हेल्थ. तो मेंटल हेल्थ को मैंने क्यों की कहा है, इसीलिए कहा है क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है आपके फिजिकल हेल्थ के लिए भी और इमोशनल हेल्थ के लिए भी. कैसे? आपका जो थॉट है, आप अगर अपने थॉट को चेंज करते हो तो आप अपने फिजिकल जो फिजियोलॉजी है उसमें भी आप चेंजेस ला सकते हो. जो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स होते हैं उससे आप प्रिवेंट कर सकते हो खुद को. और अगर आप थॉट को चेंज करते हो तो आप इमोशन को भी कंट्रोल कर सकते हो. तो थॉट्स आर द की. Changing thought can balance both mental, physical as well as emotional health. So whole health begins with mental health. आप सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप अपने चैट बॉक्स में लिखें कि आप स्ट्रेस के अपोजिट से क्या समझते हैं और आपके दिमाग में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं जिसे आप कंसिडर करते हैं कि वो स्ट्रेस का अपोजिट है. तो आपको 10 सेकेंड्स दिए जा रहे हैं. प्लीज आप जल्दी से लिखें.
ओके, एक आंसर बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, थैंक यू। और आपको पहले मैं ये बताना चाहूंगी इसके आंसर को डिस्कस करने से पहले कि ये छोटा सा ही एक्सरसाइज मैंने रखा क्यों। ये है तो 5th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, बट ये है इसलिए ये आपके जो थॉट के डायरेक्शन है उसको चेंज करने के लिए है। हमारा जो सेंटर ऑफ थिंकिंग रहता है वो स्ट्रेस पर केंद्रित है, तो हम स्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए सारे स्ट्रेसफुल मेजर्स लेते हैं, पर हम अपने थॉट के डायरेक्शन को चेंज नहीं करते। अगर हम अपने कॉन्शियस माइंड में थॉट के अपोजिट वर्ड को लाते हैं तो हम वही चीजें यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एन इंस्टेंस, अगर आप सोच रहे हैं, ये सारे वर्ड्स जनरली आपके माइंड में आए होंगे कि रिलैक्सेशन हो सकता है, हमें चिंता नहीं है वो हो सकता है, इजी गोइंगनेस हो सकता है, कामनेस हो सकता है, तो बहुत सारे वर्ड्स है जो स्ट्रेस के अपोजिट में हमारे दिमाग में आते हैं। तो अगर आप सिर्फ वर्ड स्ट्रेस को सेंटर में रखकर सोचेंगे तो हमारी हालत क्या होती है? हमारी हालत कुछ इस तरह से होती है, आई स्ट्रेस अबाउट स्ट्रेस बिफोर देयर इज इवन स्ट्रेस टू स्ट्रेस अबाउट, देन आई स्ट्रेस अबाउट स्ट्रेसिंग ओवर स्ट्रेस दैट डजंट नीड टू बी स्ट्रेस्ड अबाउट एंड इट्स सो स्ट्रेसफुल। तो अगर आप स्ट्रेस के बारे में सोचेंगे तो वो स्ट्रेसफुल ही होगा। तो अगर आप अपने थिंकिंग को चेंज करके जो हमें अटेन करना है, हमें अटेन करना है सेटिस्फैक्शन, हमें अटेन करना है हैप्पीनेस, हमें अटेन करना है साउंड हेल्थ, और उस पर केंद्रित करके अपने थॉट को सोचेंगे तो हम वही चीज अटेन भी करते हैं और यूनिवर्स भी हमारी फिर मदद करती है वही चीज अटेन करने में, वही वाइब्रेशंस लेने के लिए। और अल्टीमेटली जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। तो चलिए, अगर हमें कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती है या कोई प्रॉब्लम हम एनकाउंटर करते हैं, कोई हेल्थी इशू है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि सर वो मेरा थोड़ा स्टमक अपसेट है, तो डॉक्टर पूछता है कि आपको हुआ क्या? तो आपने कहा कि मेरे पेट में थोड़ा दर्द है। फिर डॉक्टर पूछता है कि ये दर्द हुआ क्यों, क्या क्या ऐसे कारण है, आपने क्या खाया था, सुबह क्या खाया था जिसकी वजह से आपका पेट खराब हो गया? तो आप फिर बताते हो, तब जाके डॉक्टर डिवाइस करता है ट्रीटमेंट। इसी तरह से हम लोग मेंटल प्रॉब्लम्स को डील भी इसी तरह से करते हैं। तो अगर हमें स्ट्रेस को क्योर करना है, हमें जानना है कि हमें स्ट्रेस है तो हम क्या क्या वेज अपना सकते हैं इसको मैनेज करने के लिए अच्छी तरह से, तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत होती है कि स्ट्रेस है क्या। तो फर्स्ट पार्ट जो इस सेशन का है वो इसी से डील करता है कि स्ट्रेस क्या है। सेकेंड पार्ट हम डील करेंगे कि जो स्ट्रेस है और आ गया है और बना हुआ है तो वो क्यों है। तो सेकेंड पार्ट हमारा डील करेगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या कारण है, ऐसे कौन कौन से स्ट्रेसर्स हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस जो है वो बना हुआ है। एंड थर्ड पार्ट वुड बी अल्टीमेटली हमारा क्या क्या टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज हो सकती है स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए, और वो भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत सारी डिटेल में आपको बताएंगे। और सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेस क्या है। जनरली हम लोग एक हाइपरबोला माइंड में क्रिएट करके रखते हैं कि हमें स्ट्रेस है तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हम कोई न्यूरोटिक प्रॉब्लम से ग्रसित हो सकते हैं, बट इट्स जस्ट अ नेचुरल रिस्पॉन्स। It's just simply a response of your body, of your thought, of your emotions. ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन करके स्ट्रेस एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। और ये नेचुरल रिस्पॉन्स है किसके लिए? किसी भी प्रकार के इवेंट के लिए। अब वो इवेंट जो है ना, ऐसे कोई भी इवेंट के लिए हम स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो सकते, बट जिनके लिए होते हैं तो उसकी शर्त होती है कि वो जो इवेंट है, वो जो चीज हमें थ्रेट लग रही है, वो एक्चुअली में हमारे फिजिकल यानी कि शारीरिक और साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक जो फंक्शनिंग है, जो हमारी कार्य करने की क्षमता है, उसको कहीं ना कहीं बाधित कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। अगर कोई इवेंट डिस्टर्ब कर रहा है हमारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को, तो हमारी जो बॉडी है, हमारा माइंड है, वो एक रिस्पॉन्स देता है और उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस तो बहुत ही सिंपल चीज लग रहा है देखने में, तो अंतर कहाँ आ जाता है? अंतर आता है जब हम उस इवेंट को मीनिंग देते हैं। तो अगर भगवान ने दी जाए, भगवान ने अगर हमें स्ट्रेस दिया है तो वो एक इवेंट के तौर पे घटा कि इवेंट हुआ, प्रोसेस हुआ, हमने रिस्पॉन्स किया, काफी सिंपल था। पर जब हम अपना रिएक्शन उसमें डाल देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो पूरे स्ट्रेस के स्वरूप को ही चेंज कर देती है और हमारे लिए अल्टीमेटली वो डिग्रेडेशन का कारण बन जाती है, जिससे हमारे हेल्थ जो है वो इफेक्ट पड़ता है उस पर।
हैंस सेली ने कहा है कि इट इज नॉट स्ट्रेस दैट किल अस, इट इज आवर रिएक्शन टू इट। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्ट्रेस हमें नहीं मारता है या स्ट्रेस से हम परेशान नहीं होते, हम जो रिएक्शन देते हैं स्ट्रेस के लिए वो चीज अल्टीमेटली जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है और हम वर्क भी उसी पर करेंगे। स्ट्रेस को साइकोलॉजिस्ट ने दो तरह से डिवाइड किया है, दो तरह के स्ट्रेस होते हैं। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि हम स्ट्रेस को मीनिंग कैसे दे रहे हैं। अगर हम स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में लेते हैं, स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं और इनफ स्ट्रेटजीज बना के रखते हैं, अपने पास सारे रिसोर्सेज रखते हैं जिससे कि हम स्ट्रेस को कोप कर सके, तो हम एक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस की तरफ जाते हैं। उससे हम कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट ही कर रहे होते हैं। हमारा एनर्जी लेवल भी थ्रू आउट मेंटेन रहता है और एक्टिविटी और टेंशन लेवल पर भी ज़्यादा उसमें वेव्स जो होते हैं उसके वो मेंटेन रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। और वही स्ट्रेस को अगर हम नेगेटिवली एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है उसे कोप करने के लिए, हम परेशान हो जाते हैं कि अब हम इसे कैसे कोप करें, हमारे गोल में वो बाधा, हमारे वेलबींग में वो बाधा हमें नजर आता है, तब वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। तब जिस चीज पर सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है हमारी एनर्जी लेवल पे, चाहे हमारी एक्टिविटी उस स्ट्रेस को डील करने के लिए, हमारी एक्टिविटी, हम जो भी एक्शंस लेते हैं वो हाई होंगे, अराउजल हाई होगा, या हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी एनर्जी डिप्लीट तब भी करती है। तो अगर हम डिस्ट्रेस्ड होते हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए मतलब पूरी तरह से वो सही नहीं है और हानिकारक है। अब हम लोग समझते हैं कि स्ट्रेस, तो हमने समझा कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस एक सिंपली रिस्पॉन्स है। स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, नेगेटिव स्ट्रेस से हमारी एफिशिएंसी कम होती है, हमारी एनर्जी डाउन होती है और हम धीरे धीरे अपने आप को खत्म कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहता है दिमाग में। तो जो चीजें इस स्ट्रेस को क्रिएट करती है उन्हें हम लोग साइकोलॉजी की लैंग्वेज में स्ट्रेसर्स कहते हैं। उनके लिए टर्म कहा जाता है स्ट्रेसर्स। अब एग्जाम्पल के रूप में एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेसर्स में मैं आपको बताऊं तो एक्सटर्नल मतलब हमारी बॉडी के आउटर में, सराउंडिंग में जो स्ट्रेसर्स हैं, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण बनते हैं, वो है कि कोई हमारे परिजन है या जो हमारे बहुत क्लोज थे उनका सडनली डेथ हो जाना, या कोई ऐसी इंजरी या एक्सीडेंट हो जाना, किसी प्रकार का कोई रोग जो हमें काफी लंबे समय से परेशान किए हुए है, हमारी फैमिली में कोई जो मतलब किसी रोग से ग्रसित है, किसी भी तरह का रिलेशनशिप इशू होना, टूटना या झगड़े वगैरह होना, अगर रिटायरमेंट होता है तो भी वो स्ट्रेस का कारण बनता है, वर्क प्लेस स्ट्रेस होता है, तो और इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रेसर्स होते हैं एक्सटर्नल अगर लेवल पे देखा जाए तो। और इंटरनल लेवल पर देखें मतलब हमारे शरीर के अंदर हमारा फिजियोलॉजी है, हमारा साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजिकल लेवल पर देखें तो हमारे एक्सपेक्टेशन भी स्ट्रेसर्स की तरह काम कर सकते हैं। अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है और एक्सपेक्टेशन को जो पूरा करने के लिए हमें परफॉर्मेंस देना होता है वो बहुत कम है, हमने सोचा है कि हमें सिविल सर्विसेज निकालना है पर हमारा जो तैयारी है वो एक दिन भी हम पढ़ नहीं रहे, तो हमारा परफॉर्मेंस एकदम कम है, एक्सपेक्टेशन हाई है। जितना गैप इन दोनों के बीच में उतना ज्यादा हम स्ट्रेस्ड आउट होंगे। हमारा डिमांड बहुत ज्यादा है, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, पर कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। इन दोनों के बीच में गैप जितना ज्यादा है हम उतने ज्यादा स्ट्रेस्ड होंगे। अगर कोई इवेंट को लेके हम उस इवेंट को एज इट इज परसीव ना करने के बजाय मिस परसीव कर रहे हैं, वो भी स्ट्रेसर का कारण बनता है। ओवर एजम्पशन करना किसी भी चीज को लेके, कोई फ्रेंड्स है, सोशल सराउंडिंग है, उन सब चीजों को लेके अगर हम ओवर एज्यूम भी कर रहे हैं कई चीजों को, तो भी वो हमारे स्ट्रेस का कारण बनता है। फियर, एंगर और इसके अलावा तमाम चीजें होती है जो स्ट्रेसर्स की तरह काम करती है। और आप सभी के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज मैं अभी आपको बता रही हूँ, पर उससे पहले आप जान लीजिए कि स्ट्रेसर्स जो होता है उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। आपको लग रहा है कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो वो एक स्ट्रेसर की तरह है मेरे लिए, हमने कैटेगरी बना ली, पर ऐसा नहीं है। स्ट्रेसर क्या होते हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि स्ट्रेसर जो होते हैं वो लाइफ के पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों तरह के इवेंट से जनरेट हो सकते हैं। पॉजिटिव इवेंट्स में आ सकता है, कोई मेजर इवेंट लाइफ में आ रहा है जैसे कि शादी, अगर शादी होने वाली है तो पॉजिटिव इवेंट, पर वो स्ट्रेस जनरेट करती है, स्ट्रेसर की तरह काम कर सकती है। नेगेटिव में तो फेलियर, रिटायरमेंट और बहुत सारी चीजें आ सकती है। अब ये जो टेंडेंसीज, ये जो स्ट्रेसर्स हैं, ये दो तरह की टेंडेंसीज जनरेट करते हैं। एक सिचुएशन है
और उस सिचुएशन से या तो भागने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं या तो उस सिचुएशन का सामना करने के लिए। तो अप्रोच अवॉइड वाली जो टेंडेंसी है वो ये स्ट्रेसफुल इवेंट्स जो है वो जनरेट करते हैं। ये जो स्ट्रेसर्स होते हैं ये इतने ज्यादा इंटेंस होते हैं कि एक स्टेट ऑफ ओवरलोड कॉन्स्टेंटली माइंड पर बना रहता है। एक भारीपन सा दिमाग में हमेशा ऑल द टाइम बना रहता है, और उस चीज को अडेप्ट करने की जो हमारी क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है, और काफी डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए उस चीज को अडेप्ट करना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो स्ट्रेसर्स की सबसे बड़ी खासियत है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तभी वो स्ट्रेसर है। तो जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अगर हम एक डांट लगाएंगे तो वो पढ़ने बैठ जाएगा, वो हमारे कंट्रोल में है, हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो जब वो सारी चीजें हमारे कंट्रोल में, तो वो स्ट्रेसर नहीं हुआ। स्ट्रेसर वो हुआ जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। अब आपके लिए जो एक्सरसाइज है वो ये है कि आप अपने आसपास देखें, पहचानें, शांति से सोचें, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखें, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को देखें, और सारे स्ट्रेसर्स को ढूंढकर लिखें एक जगह, उनके नाम दें। कई चीजों के तो नाम भी हम लोग नहीं दे पाते, तो उनको नाम देने की कोशिश करें और एक लिस्ट बनाएं, और वो लिस्ट हो सके तो हमें सेंड करें, जहां तक हो पाएगा हम मदद करेंगे। और एक स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करना स्ट्रेस मैनेजमेंट का पहला स्टेप है। जब तक आप पहचानेंगे कि नहीं किससे मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तब तक हम उस पर वर्क कैसे करेंगे। तो एक लिस्ट बनाइए, ये है छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए। ठीक है, तो अब हम समझते हैं जो स्ट्रेस है। हमने जान लिया स्ट्रेस एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जो स्ट्रेसर्स होते हैं वही हमारे स्ट्रेस को लीड करते हैं, और स्ट्रेसर्स के कारण ही हम स्ट्रेस में होते हैं। पर ये जो स्ट्रेस है ये वर्क कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका स्वरूप क्या है, और स्पेशली तब जब इतनी बड़ी महामारी विश्व स्तर पर फैल रही है, तब हमारे स्ट्रेस का नेचर क्या हो जाता है, और नॉर्मल डेज और अभी के दिनों में स्ट्रेस कहाँ पर उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे अभी के दिनों में और नॉर्मल के दिनों में स्ट्रेस में अंतर कहाँ है। तो मेन अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो वो कारण पर ही आता है, मतलब फैक्टर्स, यानी कि स्ट्रेसर्स जो नॉर्मल डेज में अलग हो सकते हैं और अभी के दिनों में अलग हो सकते हैं। नॉर्मल डेज में तो जैसा कि अभी मेंशन किया मैंने, डेली लाइफ हैसल्स, हर दिन जो होने वाले छोटे मोटे झगड़े होते हैं या अनोइंग सिचुएशन आ जाती है, वो सारी चीजें स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सोशल सपोर्ट की कमी अगर हमें वर्क प्लेस पे महसूस हो रही है, या एम्प्लॉयज के साथ महसूस हो रही है, या फ्रेंड सर्कल में पीयर प्रेशर के थ्रू महसूस हो रही है, कोई भी कारण हो, ये स्ट्रेस जनरेट करता है। रिलेशनशिप इशू, एकेडमिक प्रेशर, फेलियर, बहुत सारी चीजें। स्पेशल है कोविड के दिनों में हमारे लिए स्ट्रेस के कारण क्या हो सकते हैं। तो वो पहला कारण ये हो सकता है कि सेल्फ आइसोलेशन कई लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है डील करना। इवन सुसाइडल केसेस भी देखे गए हैं जब उन्हें आइसोलेट किया गया। तो सेल्फ आइसोलेशन से डील करना, और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रॉब्लम हो सकती है। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए डिस्टेंस बनाए रखना काफी मुश्किल होता है, तो ये उनके स्ट्रेस का कारण बन सकता है। अभी बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूज है, हर समय हमें कोविड-19 की अपडेट्स मिलते रहते हैं, किस कंट्री में कहाँ तक रेट और सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। इवन साइकोलॉजिस्ट और हेल्थ प्रोफेशनल ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपडेट अभी अपने आप को ना रखें, और जितना हो सके अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने पर ध्यान दें। फिर भी ओवरडोज हो जाता है नेगेटिव न्यूज़ का, और वो स्ट्रेस का कारण बन जाता है। इवन ये भी हमारे लिए स्ट्रेस का कारण होता है कि हमारा अज्यूम करना, एक हाइपरबोला बना लेना कि वर्ल्ड लेवल पर ये पैंडेमिक जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं दूसरी जो काफी ज्यादा रेट्स में नुकसान पहुंचा रही है ह्यूमन काइंड को, पर फिर भी चूंकि ये अज्ञात है, इसका कारण हमें नहीं पता, इसका ट्रीटमेंट हमें नहीं पता कि कौन सी वैक्सीन, कौन सी मेडिसिन इस पर काम करेगी, तो अज्ञात का भय हमेशा ज्यादा होता है। तो इसीलिए ये वरी और फियर भी हमारे स्ट्रेस का कारण है आज के दिनों में। ओवर एक्सपोजर टू स्क्रीन, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं दिन भर, या तो हम लोग टीवी देख रहे हैं या तो फोन में इन्वॉल्व है। किसी तरह से अपने स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखने के लिए भी कई लोग, और अपने टाइम को पास करने के लिए भी इस तरह से इन्वॉल्वमेंट जो स्क्रीन में है वो भी हमारे अभी प्रेजेंट में स्ट्रेस का कारण है, और हम लोग स्ट्रेस फील करते हैं ज्यादा अगर एक्सपोजर हो जाए तो।
कई ऐसी फैमिलीज भी हैं जिनके बच्चे या उनके स्पाउस वगैरह दूर हैं घर से, किसी कारणवश वो वहीं हैं, तो उनकी चिंता भी हमें घर में खाती रहती है और वो हमारे स्ट्रेस का एक इम्पोर्टेंट कारण है। तो ये एक अंतर है स्ट्रेस का नॉर्मल डेज में और कोविड डेज में। अब ये जो स्ट्रेस है जो हमें दिख रहा है इतने सारे कारणों से हो सकता है हमें हुआ हो या हम फील करते हो, इसका अल्टीमेट इफेक्ट जो पड़ता है ना, वो पड़ता है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पर। जो सफर करती है वो करती है इम्यूनिटी, और ये इम्यूनिटी सिर्फ फिजिकल इम्यूनिटी तक सीमित नहीं है कि आपने विटामिन सी लिया और ये इम्यूनिटी मेकअप हो गई, नहीं। ये साइकोलॉजिकल भी है, ये इमोशनल भी है, ये सोशल भी है। फिजिकल इम्यूनिटी में तो हमारे शरीर की WBC जी जान लगा देती है लड़ने के लिए, जो भी बाहरी ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी का कहाँ? पॉजिटिव थॉट्स आप फीड कर रहे हैं अपने आप को नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव न्यूज से लड़ने के लिए? नहीं। तुम्हारी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी कहीं ना कहीं क्षति हो रहा है, क्षति पहुंच रहा है उसको। इमोशनल इम्यूनिटी में पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, क्योंकि इतना हमारा एक्सपोजर है नेगेटिविटी के लिए कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव इमोशन को फोस्टर करना बहुत मुश्किल है। एक कांस्टेंट भय, एक कांस्टेंट वरी, एक शक हमेशा ऑल द टाइम बना ही रहता है। तो पॉजिटिव इमोशनल इम्यूनिटी हमारी सफर कर रही है, और सोशल तो सफर कर ही रही है, क्योंकि सोशल नीड्स जो हमारे हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं अभी के दिनों में स्पेशली। तो अगर हमें स्ट्रेस समझ में आया, स्ट्रेस के इम्पैक्ट समझ में आए, उसका इफेक्ट हमें क्लियर है कि इम्यूनिटी हमारी जो है उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है, एक छोटा सा ग्लैंस आपको दे रही हूँ कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फिजियोलॉजिकली हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं स्ट्रेस के लिए। आपको याद होगा वो दिन, आई थिंक 25 मार्च था, जब 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया कि अब आज से रात 12 बजे से लॉकडाउन होने वाला है। तब जो आपने फील किया होगा रश ऑफ इमोशंस, वो आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो आप उससे रिलेट करें। एक अलार्म स्टेज आता है, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ एक अराउजल स्टेट आए, एक फाइट फ्लाइट की सिचुएशन आए कि अब हमें क्या करना है, अभी इमीडिएट एक्शन हम क्या ले। तो चलिए राशन दुकान जाते हैं, दूध की दुकान जाते हैं, कल से सब बंद हो जाएगा। मतलब हमें नहीं पता चल रहा था कि हम डील कैसे कर रहे हैं, ये बॉडीली रिस्पॉन्स था। और हम क्या किए, गाड़ी निकाले और चले गए सामान लेने के लिए। तो वो जो स्टेज था ना, वो पहले दिन का जो प्रेशर था ना, वो अलार्म स्टेज था। हम उसमें हमारी जो बॉडी का मैकेनिज्म था वो फाइट या फ्लाइट, यही सिचुएशन पर बेस्ड करता था। हमारा अराउजल बिल्कुल हाई। रेजिस्टेंस स्टेज में क्या होता है, जब हमारा शरीर पहुंचता है, हमारा रिस्पॉन्स फिजियोलॉजिकली ये होता है कि जो अराउजल है वो अलार्म स्टेज से कम होता है, तो थोड़ा सा उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है, और जो आपका अबव नॉर्मल रेट में आप सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करके उस स्ट्रेसर से लड़ रहे होते हो। और थर्ड स्टेज आता है एग्जॉशन का स्टेज, जिसमें कि हम कंप्लीटली गिव अप कर देते हैं। तब क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है प्रोन हो जाती है सभी चीजों के लिए, सारी चीजें आए बाहर से और उस पर अटैक करें। आपने फील किया होगा जब आप एकदम स्ट्रेस्ड आउट होते हो, आउटबर्स्ट हो जाता है आपके इमोशन का, जब आप गिव अप कर चुके होते हो, तब छोटी सी चीज भी अगर मम्मी ने आपको डांट दिया तो वो आपके लिए बड़े दुख का कारण बन जाती है। तो अगर आपने नॉर्मल डेज में फील किया हो तो इसे रिलेट जरूर करना और उस हिसाब से अपने आप को समझना। लेकिन इस सिस्टम में, इस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स और जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम वाले इस सिस्टम में एक कमी ये है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि अगर हम थॉट लेवल में चेंज लाते हैं तो क्या ये पूरा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। इसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। जब आप किसी चीज को देखते हैं, अगर आप अपने देखने का नजरिया चेंज कर लेते हैं ना, तो वो पूरी चीज ही बदल जाती है। तो अगर एक स्टिमुलस इवेंट है, मैं यहाँ पे दोनों चीजें दो चीजें साथ में लेकर बताऊंगी। अगर एक स्टिमुलस इवेंट है, स्टिमुलस इवेंट यानी कि ऐसी चीज जो आपके अंदर एक रिस्पॉन्स को इवोक कर रही होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए ये कोविड-19 एक स्टिमुलस इवेंट है, इसका आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। तो प्राइमरी लेवल पे हमारे कॉग्निटिव लेवल पे यानी थिंकिंग के लेवल पे क्या प्रोसेस चलेगा। पहली चीज, या तो हम सिचुएशन को हार्मलेस सोचेंगे, हम ऐसे परसीव करेंगे अरे कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं होता है इससे। ये थिंकिंग हम लोग ले आए तो हमारा अल्टीमेट रिजल्ट होगा कि हमें स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, पर है ये अप्रोच नेगेटिव। इसे हम लोग साइकोलॉजी में डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर बोलते हैं डिनायल।
थ्रेट एग्जिस्ट कर रहा है पर हम डिनाई कर दे रहे हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये दूसरे तरह का हार्म हमारे पर्सनालिटी पर लाता है, पर ये यहाँ के लिए वो स्ट्रेस की तरफ से नहीं ले जाता। दूसरी थिंकिंग हमारी क्या आ रही है इसके काउंटर में, हम वही स्टिमुलस इवेंट को देख के, आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 को देख के प्राइमरी लेवल पे ये सोच रहे हैं कि हाँ ये थ्रेटनिंग है, ये हमारी वेलबींग पर असर डाल सकती है। फिर हम जाते हैं सेकेंडरी लेवल पर सोचने के लिए। सेकेंडरी लेवल पर हमारा जो थिंकिंग चल रहा होता है वो ये चल रहा होता है कि ठीक है, अगर ये आ गया है थ्रेट तो अब इसका सामना करना है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज है, हमारे पास हथियार अस्त्र शस्त्र है कि नहीं इससे लड़ने के लिए। अगर हमारे पास इनफ कोपिंग मैकेनिज्म है, इनफ कोपिंग टूल्स है हमारे पास, हमारे अंदर संतोष आ जाता है कि हाँ सारे रिसोर्सेज है, तो हमें स्ट्रेस नहीं होता है। पर जब हमारी थिंकिंग में ये आ जाता है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कमी है, अनसर्टेनिटी है, तो वो स्ट्रेस की तरफ ले जाता है। तो ये एक कॉग्निटिव लेवल का मैकेनिज्म था, और जो भी इससे पहले बताया वो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म था। अब आप अपने स्ट्रेस को पंख दीजिए और उसे उड़ने दीजिए, क्योंकि अब हम बात करेंगे स्ट्रेस को मैनेज करते कैसे हैं। अब इतनी सारी चीजें जो आपको बताई, अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि मेरे अभी फिलहाल मुझे जो स्ट्रेस है वो क्या है, क्यों है, और वो कैसे हमारे शरीर पर और मन पर काम करता है। अब हम उसे मैनेज कैसे करें। मैनेज करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि पॉजिटिव मैनेजमेंट तो एक चीज है, पर हम मैनेज करते कैसे हैं, जो कि सरासर गलत है, जिसे हम बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते हैं, और जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है। नेगेटिव मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस में आता है सबसे पहले स्मोकिंग। वर्क प्लेस में तो ये ज्यादातर देखा गया है, इवन कॉलेजेस में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स स्मोकिंग निकोटीन लेते हैं अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए। वो जो आप निकोटीन एक बार ले रहे हो वो थोड़े समय के लिए आपको स्टिमुलेट तो जरूर कर देता है, पर वो आगे के लिए लॉन्ग टर्म के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है। तो ये हमें बिल्कुल अवॉइड करना है कि जब स्ट्रेस फील करें तो हम स्मोकिंग की तरफ तो ना ही जाएं, और अगर जो लोग लेते हैं वो इसे छोड़ दें। दूसरी चीज है इमोशनल ईटिंग। कई बार ऐसा एंगर, ऐसा दुख, ऐसा डिप्रेशन वाली चीज, या कुछ ऐसी बात, अगर हमारे बॉस ने हमसे कुछ कह दिया, ऐसा सभी के सामने कोई इंसल्ट कर दी हमारे बॉस ने, हमारे सर या मैम ने हमें डांट दिया, हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ कह दिया, हम उन्हें उल्टा जवाब तो नहीं दे सकते, तो हम वो जो इमोशंस होते हैं उनको अंदर ही कैद करते जाते हैं और एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ाते रहते हैं। तो वही इमोशंस बाद में हमें ही खाने के लिए दौड़ते हैं। इसीलिए हमें इमोशनल ईटिंग होने ही नहीं देना है, और वो एक्यूमुलेशन होने नहीं देना। अगर एंगर आ रहा है तो एंगर के डायरेक्शन को चेंज करके कंस्ट्रक्टिव चीजों पे निकालना है, उस तरह से मैनेज करना है। थर्ड है कि हम जो ड्रग लेते हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, स्पेशली कैफीन, चाय या कॉफी या चाय दोनों में कैफीन रहता है, और एक ये रियल ड्रग है कैफीन, और इसका ओवर कंजप्शन भी बिल्कुल सही नहीं है, और स्ट्रेस को ये ठीक नहीं करता, बस थोड़े समय के लिए हमें स्टिमुलेट करता है और अच्छी फीलिंग दिलाता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। फिर हम लोग अंडर और ओवर ईटिंग करते हैं, काफी लोगों का एक्सपीरियंस होगा, या तो वो कुछ नहीं खाते या तो बहुत ज्यादा खाते हैं, तो ओबीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर एकेडमिक लेवल पे देखा जाए या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे मल्टीनेशनल कंपनीज के एम्प्लॉयज का देखा जाए, तो उनमें भी वर्क प्रेशर के कारण बहुत ज्यादा जो सफर करता है पहले, वो कॉम्प्रोमाइज होता है, वो स्लीप होता है। तो अगर हमारा स्लीप कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, वो भी स्ट्रेस के मैनेजमेंट के लिए सही नहीं है। फिर कई लोग शॉपिंग करते हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, अल्कोहल लेते हैं, सोशल विड्रॉल करते हैं, या कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं कि मुझे स्ट्रेस है भी डिनाई कर देते, तो वो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट की नेगेटिव टेक्निक में मानी जाती है। अगर अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से अपने स्ट्रेस को डील कर सकते हैं और इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो प्राइमरी लेवल पे हमें सबसे पहले एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है। हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए हमें इस तरह की लाइफस्टाइल अपनानी है जो स्ट्रेस को भी प्रिवेंट करे, और अभी कोविड-19 में इन्फेक्ट होने के चांसेस को भी हमारे कम कर दे। तो सबसे पहले आप सभी को ये रूटीन बनाने के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप एक अपना रूटीन बनाएं। और रूटीन जब बनाएं तो सबसे पहली चीज जो उसमें इन्वॉल्व करे वो ये कि अपने सोने और जागने का टाइम फिक्स कर दें। पहले वर्क इसी पर करें कि आपको उठना कब है और आपको सोना कब है। जब आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे तो बाकी सारी चीजें भी मैनेज हो जाएगी।
एक्सरसाइज को आप अपने रूटीन में शामिल करें और बहुत अच्छे से अभी अदिति पांडे आपको डिटेल में बताने वाली है क्या चीज़ें आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। हेल्दी मील्स बनाएं और उसे इन्वॉल्व करें, वही खाएं और सोशल मीडिया वाइजली यूज़ करें। हो सके तो अपने पेरेंट्स गार्जियन के साथ अच्छे से लंबी बातें करें, एक इमोशनल गैप को कम करने की कोशिश करें। हमें थोड़ा सा दुख होता है तो हम 2000 किलोमीटर दूर बैठे अपने फ्रेंड को बता देते हैं, पर अपने माता पिता से नहीं कहते। तो अपने मम्मी पापा से बात करें, शेयर करें एक दूसरे के काम, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश करें और स्मॉल मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस को क्रिएट करें। स्लीप साइकिल को मेंटेन रखें। और अभी के समय में ज़्यादातर लोग दिन भर मोबाइल लेके टीवी के सामने बैठे रहते हैं, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप ब्रेक लें, हर 40 मिनट्स के बाद उठें। एटलीस्ट अभी पानी पीने के लिए भी ज़्यादा पानी पीने के लिए रेकमेंड किया ही जा रहा है, तो उठें और एक गिलास पानी पी लें और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग के बारे में भी डिटेल में अदिति आपको बताएंगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था इसमें कि अगर आप फिर भी स्ट्रेस फील करते हैं और कहीं नहीं निकाल सकते, तो एक टाइम दिन में ऐसा निकालें जिसमें आप सिर्फ अपने आप से बात करें और सेल्फ हीलिंग करें। और ये लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए 4 प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहले आपको सोचना होता है कि आपको कौन सी लाइफस्टाइल अपनानी है। सोच में लाएं कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, फिर उसके लिए प्रिपेयर करें, फिर उस पर एक्ट करें और उसे मेंटेन रखें। इसके अलावा खाने में आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, स्पेशली अभी के दौरान में। ऐसा चीज़ें आपको अपने मील में लेनी है जो कि आपके मूड को एलिवेट करे और आपके स्ट्रेस को कम करे। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ल्यूकवार्म वाटर ले सुबह और शाम को एटलीस्ट, सिट्रस फ्रूट्स ले, स्पाइसेस ले, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक। जिंक रिच फूड ले, जिंक में ये भी माना जाता है कि एंटी वायरल इफेक्ट्स होता है, तो ये काफ़ी मदद करता है। मैग्नीशियम रिच फूड्स ले, एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूड करें अपनी डाइट में। खाने और फिजिकल लाइफस्टाइल चेंज के अलावा आप अपनी मेंटल हाइजीन को भी मेंटेन रखें। जब भी आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें तो ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी कोपिंग स्ट्रेटेजी अपनाएं। प्रॉब्लम को देखें, आइडेंटिफाई करें, एक प्लान बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। नहीं हो पा रहा है तो सोशल सपोर्ट ले, एडवाइस ले जो हमसे बड़े हैं, हमारे टीचर्स हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए। इसके अलावा मेंटल हाइजीन के लिए अपने पॉजिटिव इमोशंस को फोस्टर करें, चेरिश करें स्मॉल मोमेंट्स को, दूसरों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें और अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करें। सेकेंडरी टूल्स में हम लोग जनरली अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम करते हैं, यानी कि स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग बहुत तरह से होता है मेंटल हेल्थ स्टेटस चेक करने का। यहाँ पर मैं आपको सेल्फ एग्जामिनेशन रिकमेंड करूंगी कि आप अर्ली साइंस डिटेक्ट करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको स्ट्रेस है तो बहुत तरह के साइंस हो सकते हैं। मूड सिग्नल्स में एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग, होपलेसनेस वाली चीजें, इरिटेशन बार बार हो रहा है, रेस्टलेसनेस ऑल द टाइम है, स्टमक अपसेट है आपका। बिहेवियरल साइंस में एग्रेशन निकल रहा है, हर छोटी बात पर आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे काम शुरू कर रहे हैं और ज्यादातर काम आप आधा स्टार्ट करके आधे में ही छोड़ देते हैं। इमोशनल आउटबर्स्ट छोटी छोटी चीजों में आपका हो जा रहा है और नींद अच्छे से पूरी नहीं हो रही है। ये सारे साइंस होते हैं स्ट्रेस के। हम लोग स्ट्रेस को इवेलुएट जनरली करते हैं क्वेश्चनर टूल से। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आप अपने आप में देख सकते हैं कि आई गिव एंड रिसीव अफेक्शन रेगुलरली। तो आपको 5 पॉइंट्स पे रेटिंग करनी होती है, ऑलमोस्ट, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली या नेवर। तो अभी भी आप अपने आप को एनालाइज तो कर ही रहे होंगे। एक ये क्वेश्चन है कि मैं इस पॉइंट तक एक्सरसाइज करती हूँ कि मेरे अंदर मतलब मुझे बहुत पसीना आता है, एटलीस्ट वंस अ वीक। एक ये भी इस तरह का क्वेश्चन भी रहता है कि हाँ, मैं अपनी फीलिंग्स, अपने एंगर या वरीड का जो भी कारण है उसके बारे में ओपनली बात कर सकती हूँ। क्या आप करते हैं? आपको लगता है? मेरे पास कुछ ऐसे दोस्त हैं या ऐसे कोई रिलेटिव हैं जिससे मैं अपनी हर चीज शेयर कर सकती हूँ, छोटी से छोटी, गलत से गलत, बुरी से बुरी। ऐसा अगर कोई दोस्त या फ्रेंड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप एनालाइज कर लीजिए और एक जीवन में होना ही चाहिए। इसके अलावा म्यूजिक जो होता है वो काफी इफेक्टिव होता है अपने स्ट्रेस से डील करने के लिए। म्यूजिक के जो रिदम होते हैं वो आपके ब्रेन वेव्स को पैसिफाई करते हैं। अगर फास्ट बीट्स है तो वो कंसंट्रेशन और अलर्टनेस लाता है, अगर स्लोअर बीट्स है तो कामनेस और एक मेडिटेटिव स्टेट लाता है। तो म्यूजिक थेरेपी भी दी जाती है, मतलब प्रोफेशनली भी दी जाती है, और आप घर में भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूब्स में स्ट्रेस फ्री करने के लिए म्यूजिक अवेलेबल है जिसका यूज करके आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं।
इसके अलावा बिहेवियरल टेक्निक में हम लोग प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन देते हैं, जिसमें कि कंसेक्यूटिवली कॉन्स्ट्रिक्ट और एक्सपेंड करते हैं बॉडी के मसल्स को। डिटेल में अदिति आपको बताएगी। हम काउंसलर्स क्या करते हैं, हम लोग जनरली हेल्प करते हैं आप लोगों की कि आप अपने फीलिंग्स को, ऐसे तो हम लोग खुद ही अपने आप में करने की कोशिश करते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर हम नहीं कर पा रहे होते तो हम लोग मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं। तो जो काउंसलर होते हैं वो आपकी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने में, आपके एक्सपीरियंसेस और थॉट्स को एक्सप्लोर करने में आपकी मदद करते हैं, आपको चीज़ें ऑब्जेक्टिवली दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाते हैं जिसमें से आप अपने सॉल्यूशंस खुद ढूंढ सके। वो डायरेक्टिव भी होता है, नॉन डायरेक्टिव भी होता है। तो अपन क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को समझते हैं और फिर उस पर एक्ट करते हैं। जनरल केसेस में काउंसलिंग में तो नॉन डायरेक्टिव ही दिया जाता है कि आप अपने आप ही सोल्यूशन ढूंढे, पर यहाँ पर मैंने जैसे दिखाया है कि हम लोग एडवाइस भी देते हैं, अश्योर भी करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं हर एक लेवल पे, आपके इमोशनल टेंशन को रिलीज करते हैं। यहाँ पे एक पेशेंट दिख रहा है, मे बी पता नहीं उसको कोई टेंशन है, घर का झगड़ा ही होगा, और वो काउंसलर को बता रहा है। आपकी थिंकिंग को क्लैरिफाई करते हैं, और अगर थिंकिंग में कोई डिसओरिएंटेशन है, आपका अप्रोच नेगेटिव है, तो उसको रीओरिएंट करके एक पॉजिटिव की तरफ हम लोग मोड़ देते हैं। इतना काम हम लोग काउंसलिंग करते हैं, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर कोई सफर कर रहा है तो। यहाँ भारत में थोड़ा स्टिग्मा की तरह लिया जाता है, पर जनरली लेना चाहिए काउंसलिंग। अगर आपको जरूरत है तो एक फ्रेंड की तरह ही काउंसलर काम करता है। उसके अलावा बहुत अदर थेरेपीज हैं जो हम लोग देते हैं अगर स्ट्रेस हाई लेवल पर है, जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वगैरह में अपन स्ट्रेस इनोकुलेशन थेरेपी देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में गाइडेड इमेजरी करवाते हैं, और लेबोरेटरी सुविधा जहाँ है वहाँ बायो फीडबैक देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आगे के सेशन कंटिन्यू रहेगा कि योगा से कैसे हम स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। योगा अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट और कंप्लीट है। ये हमारी वेलबींग, हमारा मेंटल और बॉडीली बैलेंस, कंसंट्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, स्ट्रेंथ, एक कंप्लीट पैकेज योगा अपने आप में है। और इसके बारे में अदिति पांडे आपको बहुत अच्छे से बताएगी। लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि कई चीजें अभी हैं हमारे सामने, काफी अभी हमारे लिए बहुत बड़ी हो सकती है और हम उससे गुजर भी रहे होते हैं, पर आगे आने वाले 10 साल बाद अगर हम उसको देखेंगे तो हमें हंसी आएगी कि बताओ हम कितनी छोटी सी बात पर गुस्सा थे, कितनी छोटी सी बात पे नाराज थे। तो अगर हम उस समय हंस सकते तो अभी हंस के क्यों नहीं अपने आप को थोड़ा लाइट कर लेते हैं। अगर हम हंसेंगे तो हम थोड़ा लाइट रहेंगे और दूसरों को भी लाइट रख पाएंगे। तो आप हंसिए हंसिए, थोड़ा खुश रहिए, और लाफिंग बेस्ट थेरेपी है। तो इसीलिए आप सभी से आग्रह है कि खुश रहें और आसपास के लोगों को भी खुश रखें ऐसे समय में। हैंड ओवर टू यू नीलांचल। थैंक यू, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच स्मृति मैम। आपकी जो भी प्रेजेंटेशंस थे इससे लोगों को कुछ सीखने को मिला, नई टेक्निक समझ में आई, और जो आपने कंक्लूड करा कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, और जैसे कि कहा भी क्या है कि हम जब हंसते हैं तो चाहे वो नकली भी हंसे, वो हमारे शरीर को पॉजिटिव तरीके से बेनिफिट करता ही है। और स्माइल इज द इन्फेक्शन डिजीज, तो हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हंसने का प्रयोग कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। थैंक यू सो मच स्मृति। और जैसा कि हम लोग ये 2 दिन के सेशंस को लेकर चल रहे हैं, आज पहला दिन है जिसमें हमने पहला सेशन अटेंड किया, और कल का सेशन के बारे में मैं फिर से बता दूं, कल हमारे साथ एक बहुत ही खास एक्सपर्ट होंगे हमारे सर संजीव कुमार यादव सर, जो कि नेपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी से पीएचडी स्कॉलर हैं, और वो हमें योग निद्रा के संबंध में कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकें उसके संबंध में हमें जानकारी देंगे। प्रैक्टिकल सेशन भी होगा, और जिसका फिजियोलॉजी और थेरेपेटिक एस्पेक्ट है उसको भी वो डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ कल तक के लिए। और आज के अगले सेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा अदिति को, अदिति पांडे। ये इंटरनेशनल योगा ट्रेनर है, ये अपनी सेवाएं कल्ट फिट मुंबई में दे रही हैं, और जो इनका सेशन है उसको ब्रीफ करने के लिए मैं आमंत्रित करूँगा अदिति को। और अदिति क्योंकि आज का प्रैक्टिकल सेशंस लेंगी, तो अदिति आज का सेशन जो भी होने वाला है आप इसको बता दें। अदिति, आपको आवाज आ रही है?
थैंक यू नीलांचल एंड स्मृति। आज का जो मेरा सेशन है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। अभी तक आप सभी ने देखा सुना कि किस तरीके से स्ट्रेस जो है वो हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग को इफेक्ट कर रहा है। वो किस तरीके से हमारे बॉडी में चेंजेस लेके आ रहा है। हर कोई अपने लेवल पे स्ट्रेस को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझता है। हर कोई की तनाव को समझने की परिभाषा जो है वो अलग है, लेकिन स्ट्रेस का जो मेन कॉज है वो यही है कि वो हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों ही एस्पेक्ट्स को कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है। तो हम उन एस्पेक्ट्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उसको हम हील कर सकते हैं। जो भी हमारा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ है वो बिगड़ रहा है, तो उसको ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, ऐसे कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जिनका यूज करके हम उन सबको रिलीव कर सकते हैं और उनको हेल्दी बना सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये है कि हमें अपने हेल्थ को, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग आना चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग क्या होता है, इसको समझते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग मतलब होता है जीवन जीने की कला। हमारा खान पान, रहन सहन, व्यवहार, बातचीत वो किस तरीके का है, उसको हम किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। वो एक शेड्यूल्ड वे में है या कि हम कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं और किसी से कुछ भी बात कर रहे हैं। ये सारे जो हमारा आर्ट ऑफ लिविंग है वो कैसे प्रॉपर फॉर्म होता है, उसे हम कैसे अच्छे से शेड्यूल कर सकते हैं, उसको हम अपनी आर्ट ऑफ लिविंग को एक अच्छा आइडियल बना सकते हैं। उसके लिए जरूरी है लाइफ में योग, प्राणायाम, आसना, मेडिटेशन और कुछ ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स का डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करना, जिससे कि हम इन सब चीजों को व्यवस्थित कर सकें, अपने जीवन को एक खुशहाल बना सकें और एक हेल्दियर लाइफस्टाइल जी सकें। और हर एक के अपने में योग की परिभाषा अलग है। हर कोई योग को डिफरेंट तरीके से समझता है, लेकिन योग सभी का अल्टीमेट एम यही है कि हम किस तरीके से अपने आप को, अपने मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ को फिट रख सकें और उसे हम स्टेबल करके अपनी लाइफ में जो भी हमारे एम है, जो भी गोल है, हम उसको कैसे अचीव कर सकें। तो हम आगे के सेशंस में प्रैक्टिकली जानेंगे कि जो भी आसनास हैं, जो भी हमारे मेडिटेशन है, प्राणायाम है, ये सब किस तरीके से हमारे स्ट्रेस को रिलीज करने में हेल्प करते हैं और हमारी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाते हैं। तो इस सेशंस में कुछ सेट ऑफ आसनास हैं जो इस प्रकार हैं। पहले हम देखेंगे कि सूर्य नमस्कार, जिसमें कि 12 स्टेप्स हैं, वो किस तरीके से हमारी हेल्थ को, हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबींग को अच्छा कर रहा है और किस तरीके से हमारे अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से, उनको कैसे क्योर करके उनमें बैलेंस लेके आ रहा है। फिर हम देखेंगे कि जो भी हमारे आसनास हैं, पादहस्तासना, कैट पोज, ताड़ासना, ईगल पोज और जानु शीर्षासना, ये जो सेट ऑफ आसनास हैं उनको वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे और उनका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो किस तरीके से हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबींग को सही करता है। फिर आगे हम जानेंगे कि हमारे जो प्राणायामा है, शीतकारी और अनुलोम विलोम, अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, ये दोनों प्राणायामा किस तरीके से हमें मेंटली और इमोशनली फिट रखने में हेल्प करते हैं। इसके बाद में हम जानेंगे कि जो भी हमारी मसल्स हैं, हमारी जो बॉडी है वो ग्रुप ऑफ मसल से बनी हुई है। तो जो हमारे मसल्स में स्ट्रेस आ रहा है, जो भी उसमें स्ट्रेन आ रहे हैं, उसको हम किस तरीके से उन प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक के थ्रू हम हील कर सकते हैं। इन सारी चीजों को हम आगे प्रैक्टिकली जानेंगे और इन सारे आसनास जो है, जो स्ट्रेस है उसको क्योर करने के लिए हम कामिंग आसनास पे ज्यादा फोकस करते हैं। कामिंग आसनास इस पे हम इसलिए ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि जो कामिंग आसनास है, सेट ऑफ आसनास है, वो हमारे ब्रेन को जो है वो हील करता है, पीस प्रोवाइड करता है, हमें एक मेंटल स्टेबिलिटी लेके आता है, जिसकी वजह से हमारे जो मेंटल, फिजिकल, बॉडी कोऑर्डिनेशन है उसको क्रिएट करता है। तो माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन को एक स्टेबल करने के लिए, एक सुचारू रूप से चलाने के लिए ये जो सेट ऑफ आसनास है उनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आइए हम लोग जानते हैं आगे और करके देखते हैं कि किस तरीके से ये आसनास हमें हमारी स्ट्रेस को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। तो वी स्टार्ट विद द सन सैल्यूटेशन। सन सैल्यूटेशन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मैट के फ्रंट में आइए। अगर आपको नी पेन है, बैक पेन है, तो फीट जो है वो आपका हिप डिस्टेंस अपार्ट रहेगा। अदरवाइज दोनों फीट को बगल में ज्वाइन करिए।
आपको अपने एब्डोमेन को अंदर करना है, अपने शोल्डर्स को कंप्लीटली रोल बैक करते हुए रिलैक्स पोजीशन में करना है। एक और चीज ध्यान रखना है आपको कि हम जब भी आसनास को परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको ब्रीदिंग का बहुत ध्यान रखना है कि आपको कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है, बिकॉज इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे माइंड को और बॉडी को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती है और उन्हें एक स्टेबल रूप में चलाने में हेल्प करती है। तो अपने स्पाइन को रोल करिए, एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को हार्ट सेंटर के सामने लाके आपको जॉइंट करना है। इनहेल, आर्म्स अप, आर्च बैक, और आपको अपने हिप को थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड करना है। यहाँ पे होल्ड करते हुए एक्सहेल, कंप्लीटली फोल्ड फॉरवर्ड। अगर आप यहाँ पे फोल्ड नहीं हो सकते तो अपनी नी को हल्का सा बेंड करिए, पाम को अपने पीठ के बिसाइड में रखते हुए नीचे लेंगे। फिर इनहेल, टेक योर राइट लेग ऑल द वे बैक। जितना पीछे आप अपने राइट पैर को लेके जा सकते हैं उतना लेके जाइए। पाम को अपने पीठ के बगल में रखते हुए अपनी स्पाइन को लेंथन करते हुए आगे की ओर देखना है। इन आसना की प्रैक्टिस से क्या होगा, जो आपकी फिजिकल स्ट्रेच है वो बहुत, जो आपका फिजिकल स्ट्रेन हो रहा है उसमें आपको रिलैक्स मिलेगा और आपके जो भी हैमस्ट्रिंग्स, थाइस में किसी भी तरीके का स्ट्रेन है उसमें आपको ये हेल्प प्रोवाइड करेगा। Now hold your breath, take your left leg back and come in दंडासन। अगर आपको यहाँ पे आने में कोई प्रॉब्लम है तो you can drop your knees down and hold here for a few seconds। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक्सहेल करते हुए ड्रॉप योर नीज डाउन, चेस्ट डाउन एंड चिन डाउन। मेक श्योर जो आपका हिप रीजन है वो आप ऑफ द मैट होना चाहिए और यहाँ पे आपको होल्ड करना है, दैट इज अस्तांगा। नाउ इनहेल, स्लाइड फॉरवर्ड, कम इन कोबरा पोज। यहाँ पे मेक श्योर योर एल्बो शुड बी टक टू योर रिब्स एंड योर ऑल द बॉडी वेट ऑन योर नेवल रीजन। नेवल रीजन पे जब हम बॉडी वेट को प्रॉपर डालते हैं तो फिर जो भी हमारे लंबर और नेवल रीजन पे वेट आता है उससे यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर मसाज मिलती है और यहाँ पे जो भी ऑर्गन्स में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन और ब्लड का सर्कुलेशन नहीं है वहां पे ऑक्सीजन और ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। नाउ एक्सहेल, टक योर टोज इन, रेज योर हिप अप, कम इन माउंटेन। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपकी नी जो है वो सॉफ्टली बेंड रहेंगे ताकि आपकी जो नीज है उन पे ज्यादा फोर्स ना आए और आप इजीली आसना को परफॉर्म कर सकें। नाउ इनहेल, take your right leg forward, in between your palm, left leg completely straight, lengthen your spine and look right. Again, exhale, bring your left leg forward in between your palm, come in Padmasana. Inhale, stretch your arms up, chest forward, hip forward, look front. Exhale, palm in Namaskara. ये है हाफ राउंड जो हमने परफॉर्म किया अपने राइट साइड से। सेम जैसे ही हम हाफ आसनास को परफॉर्म करते हैं लेफ्ट साइड से विद ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म्स अप, आर्च बैक, पुश योर हिप फॉरवर्ड, चेस्ट फॉरवर्ड एंड लुक बैक। एक्सहेल, fold forward completely, bend your knees slightly, place your palm beside your feet and look down. Inhale, take your left leg all the way back as much as you can. Push your hip forward, look front and lengthen your spine. Hold your breath. Take your right leg back. Come in Dandasana. Now let's check your alignment that your shoulder is in one straight line and body should be parallel to the ground. Don't hunch your spine और अपने स्टमक को नीचे ले जाते हुए पैर नहीं बनाना, इससे आपकी बैक में हर्ट हो सकता है। सो इट्स बेटर कि आपकी जो बॉडी है वो पूरी पैरेलल हो ग्राउंड से। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है so you can drop your elbow down and knee down and come in this position. Now after that what you have to do, exhale, drop your knees down, chest down and chin down. यहाँ पे 2 seconds होल्ड करना है। If you are not comfortable here, then straight your leg forward and completely lie down on your abdomen.
Now from here, inhale, coming Bhujangasana, arch back. जिनसे भी सर्वाइकल और बैक की प्रॉब्लम है, they can just place palm beside your chest and be there. Again, exhale, tuck your toes in, raise your hip up, coming mountain, knee softly bend, and push your shoulder in as much as you can. Inhale, take your left leg forward in between your palm and right leg straight as much as you can. Look front and lengthen your spine and be there for a 5 breath. In every asana, make sure you have to hold 5 each breath. Now exhale, bring your right leg forward in between your palm and inhale, stretch your arms up, arch back and exhale, palm in namaskar. ये जो आसना सन सॉल्यूटेशन है, ये हमारा शिवानंदासन सॉल्यूटेशन है, जिसमें कि 24 स्टेप्स हैं, जो हम दोनों राइट और लेफ्ट साइड से परफॉर्म करते हैं, ताकि जो हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं, उन दोनों में बैलेंस हो सके और हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है वो ओपन हो सके। इन आसनास को परफॉर्म करने से जो है वो हमें होलिस्टिक बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर फ्लो में होता है। ऐसे हमारे ब्रेन में बहुत सारी मसल्स हैं, नस नाड़ियां हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन और ब्लड प्रॉपर तरीके से जा नहीं सकता है, तो उनमें हम सन सॉल्यूटेशन के थ्रू उन नसों को ओपन करते हैं ताकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो हो सके। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट आसना की तरफ, जो कि है स्टैंडिंग आसना। स्टैंडिंग आसना इज फर्स्ट वन इज पादहस्तासना। पादहस्तासना जो है वो फॉरवर्ड बेंड का आसन है। फॉरवर्ड बेंड का आसन हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारे हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन, कॉर्टिसोल, डोपामाइन, इन सारे हार्मोन्स में और न्यूरोट्रांसमीटर्स में स्टेबिलिटी आ सके, वो स्टेबल हो सके और प्रॉपर तरीके से उनका फ्लो हो सके, तो जो कि हमारे स्ट्रेस को रिलीज करने में, कम करने में हेल्प करते हैं। तो पादहस्तासन की प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, मैट के सेंटर में खड़े हो जाएं। अगर आपको नी पेन है, बैक पेन है, तो आपको फीट हिप डिस्टेंस अपार्ट करना है। दोनों इनहेल करते हुए ब्रीदिंग का ध्यान रखें, लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएं, अपनी स्पाइन को लेंथन करें जितना कर सकते हैं, और उसके बाद में एक्सेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड करिए। अगर आप यहाँ तक हैं तो आप यहीं तक स्टेबल रहिए। इफ यू थिंक यू हैव अ मोर कैपेसिटी एंड एबिलिटी, देन bend forward completely and try to place your palm beside your feet. Now from here, what you have to do, place your palm beside your feet and try to touch your chin to your shin bone and hold here. If you think you are not comfortable in this, then take a support of any dupatta, something like that. इसमें भी आपको क्या करना है, पहले उत्कट आसना में बैठ जाएं। उत्कट आसना में बैठने के बाद दुपट्टे के सेंटर वाले पार्ट को पैरों के बीच में रखना है, फिर ऊपर उठना है, देन इनहेल करते हुए ऊपर उठिए और दुपट्टे को अपने बॉडी पे स्ट्रेट करना है, फिर एक्सेल करते हुए लेंथन करना है अपनी स्पाइन को, आर्च को बैक करना है, एक्सेल करते हुए फोल्ड फॉरवर्ड एंड देन ट्राई टू होल्ड योर, अपने दुपट्टे को होल्ड करते हुए अपने आप को आगे की ओर खींचना है, और फिर यहाँ पे आपको 10 पॉइंट से डीप ब्रीदिंग करनी है। ध्यान रखिए किसी भी आसना में होल्ड करते हुए आपको अपनी ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, डीपली इनहेल और कंप्लीटली एक्सहेल। जब हम यहाँ पे कंप्लीटली फोल्ड फॉरवर्ड हो रहे हैं तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे अपर बॉडी की तरफ है। अपर बॉडी की तरफ होने से क्या होता है, जो हमारे ब्रेन में नर्व्स और हार्ट में जो भी हमारे ब्लॉकेज है उनको प्रॉपर ब्लड और ऑक्सीजन मिलता है, जिससे कि जो भी हमारे प्रॉपर वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपरली उन्हें मिलता है, वो एक तरीके से उनकी तरफ फूड का काम करता है। तो आप ध्यान रखिए कि आप जब भी फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं तो आपको आपकी आंख बंद नहीं करनी है। अगर आप में आगे झुकने में प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप किसी भी ऐसे दुपट्टे का या किसी भी रोप का इस्तेमाल करके अपने आप को फॉरवर्ड बेंड करा सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप
आगे नहीं बेंड हो पा रहे हैं, तो जस्ट आपको 90 डिग्री बेंड करके कहीं पे होल्ड करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे जब इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तब आपकी जो यहाँ की मसल्स वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल हो रही है और वो आपको आगे हम करते हैं नेक्स्ट स्टैंडिंग बैलेंसिंग आसन, दैट इज ट्री पोज। ट्री पोज को करने के लिए क्या करना है आपको, आपके दोनों फीट में डिस्टेंस रखना है आपके हिप जितना। स्टैंडिंग बैलेंसिंग आसन क्या करता है, हमारे माइंड को और बॉडी को दोनों में बैलेंस लेके आता है, दोनों को कोऑर्डिनेट करता है। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मैट के बीच में खड़ा होना है, फीट को हिप डिस्टेंस पे ओपन करना है, आपको आपकी बॉडी का जो भी बॉडी वेट है वो सारा शिफ्ट करना है टुवर्ड्स द राइट साइड। देन लेफ्ट नी को बेंड करते हुए जो आपकी लेफ्ट हील है उसको आपको आपके अपर थाई में इनर की तरफ प्लेस करना है। जब आप कंफर्टेबल हो जाए यहाँ पे, यू आर कंफर्टेबल टू फाइंड योर बैलेंस, उसके बाद में आपको दोनों हाथों को आपके हार्ट सेंटर पे ज्वाइन करना है। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे कंफर्टेबल है, आपको यहाँ पे आपको होल्ड रखने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको आपकी जो दृष्टि है उसे एक जगह पे फिक्स रखनी है। एक जगह पे फिक्स रखने से क्या होता है कि जो भी हमारा जो आई दृष्टि है वो जो है एक जगह पे फिक्स रखने से हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। उसके साथ साथ में हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो माइंड और बॉडी है वो एक दूसरे को कितना कोऑर्डिनेट कर रहा है। एक जगह फोकस होने से हम हमारे अंदर जो और थॉट्स हैं और निगेटिव विचार हैं वो कम आएंगे और हम अपने आप को ज्यादा देर तक किसी एक पॉइंट पे, किसी एक बिंदु पे फोकस कर सकेंगे। सेम ही प्रैक्टिस आपको आपके दूसरे पैर से भी करनी है। के लिए क्या करना है, आपको सारा बॉडी वेट अपनी लेफ्ट साइड लेके जाना है। बेंड योर राइट नी, देन आपको लेफ्ट राइट हील को आपको लेफ्ट इनर थाई पे प्लेस करना है। जब यहाँ पे आप स्टेबल हो जाए कि हाँ आप कंफर्टेबल है कि आप यहाँ पे काफी देर तक अपनी बॉडी को होल्ड कर सकते हैं, फिर धीरे से अपने पाम को ज्वाइन करना है आपके हार्ट सेंटर के सामने, यहाँ पे होल्ड करना है। उस अगर आपको अपने आप को और चैलेंजिंग बनाना है, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए और आपके सर के ऊपर दोनों पाम को ज्वाइन करिए नमस्कार मुद्रा में और अपनी दृष्टि को एक पॉइंट पे फिक्स करिए टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन एंड अवेयरनेस। जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे डीप कॉन्शियस ब्रेथ के साथ होल्ड करिए। ट्राई करिए एटलीस्ट 10 काउंट तक तो आप होल्ड ही करें to find out that how your mind and body should be coordinate with each other। 10 ब्रेथ तक होल्ड करने के बाद धीरे से अपने हाथों को नीचे लेके आइए। हाथ के सपोर्ट से एंकल को होल्ड करते हुए पैरों को नीचे ड्रॉप करना है। इनिशियल स्टेज में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अपने आपको स्टेबल करने में, एक जगह पे रुकने में। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। वॉल सपोर्ट के लिए आपको क्या करना है, आप साइड में जाइए, वॉल को अपने लेफ्ट पाम से आपको होल्ड करना है। उसके बाद में फिर आपको है अपने राइट एंकल को होल्ड करना है राइट पाम से और आपको लेफ्ट राइट हील को लेफ्ट इनर थाई पे प्लेस करना है। जब आपको लगने लगे कि अब आप यहाँ पे स्टेबल है, वॉल के सपोर्ट से अपने पाम वॉल के सपोर्ट पे पाम रख के अपनी बॉडी को बैलेंस करने में, उसके बाद में आप क्या करिए, अपने पाम को ज्वाइन करिए और अपनी दृष्टि को एक जगह पे फोकस करिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है वो तो इंक्रीज होगी ही, साथ में आपकी अवेयरनेस ज्यादा जागृत होगी और साथ में जो भी आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ है उनमें काफी हेल्प करेगी। जो भी आपके फिजिकली मेंटली स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, उन सब से भी छुटकारा पाने में हेल्प करती है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आसना, नेक्स्ट वन इज आल्सो स्टैंडिंग एंड बैलेंसिंग आसना। इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपना सारा बॉडी वेट शिफ्ट करना है राइट साइड। आपको अपना पाम प्लेस करना है अपने वेस्ट पे, देन लिफ्ट योर लेफ्ट लेग और इसे रैप करना है अपनी राइट लेग पे। अच्छे तरीके से जब ये रैप हो जाए फिर आपको दोनों पाम को ज्वाइन करना है अपने हार्ट सेंटर पे। हार्ट सेंटर पे ज्वाइन करने के बाद अपनी दृष्टि को एक जगह फिक्स करना है। इसमें एक चैलेंजिंग ये है कि आपको थोड़ा सा साइड से प्लेस करने के बाद हिप को स्लाइटली सिंक डाउन करना है, जिससे कि
जो आपकी क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग्स है, इस पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़े और जो भी यहाँ की मसल्स है उनमें थोड़ा सा और खिंचाव हो और वो ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल हो। सेम प्रैक्टिस आपको आपके दूसरे पैर से भी करनी है। जैसे कि अब आपको क्या करना है, आपका सारा बॉडी वेट लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है और राइट लेग को उठाते हुए लेफ्ट लेग पे ड्रॉप करना है और नी को सॉफ्टली बेंड करते हुए नी को हल्का सा सिंक डाउन करना है और अपने पाम को हार्ट सेंटर में ज्वाइन करना है। बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर कंप्लीटली रिलैक्स। मेन थिंग इज दैट कि आपको आपकी दृष्टि को एक पॉइंट पे फिक्स रखना है ताकि जो भी आपकी अवेयरनेस है आपके मेंटल और फिजिकल बॉडी की तरफ वो बनी रहे और आपकी जो भी अवेयरनेस है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके और आप कॉन्शियसली जो आपका प्रेजेंट मोमेंट है उसमें रह सके। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आसन, जो नेक्स्ट आसन है वो हमारा बैठ के करने वाला है। ये हम सीरीज फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडिंग, बैलेंसिंग, उसके बाद ट्विस्टिंग एंड देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अब हमें बैठ के करने वाला नेक्स्ट क्या है, आपको सबसे पहले बैठने के लिए हाथों को सामने लेके आना है। फर्स्ट यू बेंड योर राइट नी, देन आपको लेफ्ट नी बेंड करते हुए वज्रासना में बैठना है। वज्रासना में बैठने के बाद आपको आपको पाम को एल्बोस नी के सामने प्लेस करना है। जब आपने यहाँ पे प्लेस किया, अब क्या करना है, आपको जो आपके फोर आर्म्स हैं इन्हें मैट से उठाना है और अपने आप को थोड़ा सा आगे लीन फॉरवर्ड करना है। अपने अलाइनमेंट को थोड़ा सा आपको चेक करना है कि जो आपका नी है वो आपके हिप के जितने डिस्टेंस पे रहे और आपके जो शोल्डर और रिस्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में रहे। ये जो है इसे हम बोलते हैं कैट कैमल पोज। कैट कैमल पोज जो है वो हमारे स्पाइन के लिए बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव होता है। इसमें हमें क्या करना है, इनहेल करते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए आर्च बैक करना है और स्पाइन को कंप्लीटली बेंड करना है और जो हमारा एब्डोमेन रीजन है उसको नीचे अर्थ की तरफ लेके आना है और ऊपर की तरफ देखना है। एक्सहेल करते हुए जब हम कंप्लीटली ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो स्पाइन को हंच करना है। इसमें कैमल के तरीके हंच बनाना है और अपने नेवल रीजन को देखना है। नेवल रीजन को देख के यहाँ पे होल्ड करना है। ये हम प्रोसेस जो है 2 से 3 बार करेंगे। इनहेल करते हुए अपनी स्पाइन को बेंड करिए, आर्च बैक करना है और लुक अप। एक्सहेल करते हुए कंप्लीटली हंच योर स्पाइन एंड लुक एट योर नेवल। इनहेल, आर्च बैक, लुक अप एंड एक्सहेल करते हुए आपको अपनी स्पाइन को हंच करना है और नेवल की तरफ देखना है। ये जो कैट और कैमल पोज है ये हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। जो भी हमारे स्पाइन में प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अगर आपके स्पाइन में जो है वो स्कोलोसिस जैसी कोई प्रॉब्लम हो गई है या वहां पे आपको ज्यादा देर तक हम टेबल चेयर पे अगर हमने हंचिंग करके बैठे हैं हम काफी देर तक तो हमारी जो स्पाइन है वो जब हम स्ट्रेट करते हैं तो स्ट्रेट करने में काफी प्रॉब्लम होती है। हम जो है वो थोरेसिक रीजन में, स्कैपुला में पेन फील करते हैं क्योंकि हमारा जो टाइम ऑफ पीरियड था चेयर पे बैठने का वो काफी टाइम था जिसमें हमने अपने स्पाइन को क्या है रिलैक्स नहीं किया। तो जब हम उठ के बैठते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कैट और कैमल पोज हम बैठ के भी कर सकते हैं अपनी स्पाइन के स्ट्रेस को दूर करने के लिए। बैठ के करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने पाम को नीज पे रखिए विदाउट फोर्स, किसी भी तरह का फोर्स या स्ट्रेस को दिए हुए। शोल्डर को कंप्लीटली रिलैक्स रखिए। इनहेल करते हुए कंप्लीटली अपने आर्च को बैक करिए और चेस्ट को हल्का सा फॉरवर्ड लेके आइए। फिर एक्सहेल करते हुए आपको अपनी स्पाइन को स्लोली एंड जेंटली हंच करना है और पीछे लेके जाना है। इस प्रोसेस में आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ आपकी स्पाइन वाली एरिया जो है वो मूव करेगी, इसके अलावा हमें अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट मूव नहीं कराना है। 5 से 5 to 10 राउंड्स करने के बाद आप फील करेंगे कि जो भी आपके स्पाइन में फिजिकल स्ट्रेन था, फिजिकल स्ट्रेस था, वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगा है। इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अगर आपको वज्रासना में बैठने में प्रॉब्लम है तो आप नॉर्मल सुखासना में भी बैठकर इस प्रोसेस को कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी बड़े एरिया की या किसी भी बड़े प्लेस की जरूरत नहीं है। इसे आप वज्रासन में, सुखासन में या फिर अगर आपके पास स्पेस ज्यादा है तो कैट कैमल पोज में किसी भी में परफॉर्म कर सकते हैं। ये आसना जो है वो बहुत हेल्पफुल है
हमारे मेंस्ट्रुएशनल डेज में, क्योंकि ये हमारे एब्डोमेन के जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें प्रॉपर मूवमेंट प्रोवाइड करता है। जो भी वहाँ पे क्लस्टर फॉर्म है या कोई भी ऐसे हमारे ऑर्गन्स है जो कि बहुत टाइम से वर्किंग में नहीं है, जिनको हमने काफी टाइम से उनमें प्रॉपर मूवमेंट नहीं दिया, उनमें प्रॉपर एक्सपैंड नहीं हुआ है वो, या प्रॉपर तरीके से वो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम डेली कैट कैमल पोज का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उस ऑर्गन में क्या होगा, प्रॉपर तरीके से मूवमेंट आएगा, प्रॉपर ब्लड फ्लो होगा, और जो भी वहां पे एनर्जी जो है वो वीक हो गई वो फिर से री एनर्जाइज होगी। तो इसलिए कैट कैमल पोज आप किसी भी प्लेस पे किसी भी पोजीशन में बैठ के कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आसना। नेक्स्ट वन इज द चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में आपको क्या करना है, नॉर्मली वज्रासना में बैठना है। अगर आपकी थाइस हैमस्ट्रिंग्स ज्यादा भारी है, आप इसमें नहीं बैठ सकते हैं, तो आप नॉर्मल सुखासन में भी बैठ सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए आपको आपके आर्म्स को ऊपर लेके जाना है, प्रॉपर तरीके से आपको अपनी स्पाइन को लेंथन करना है। एक्सहेल करते हुए सांसों को छोड़ते हुए कंप्लीटली फॉरवर्ड आना है, और ट्राई करना है कि जो आपका चिन है या आपका जो फोरहेड है वो आपके मैट से लग सके। यहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स करने से आपकी जो स्पाइन है और जो आपके आर्म्स है ये पूरी तरीके से लेंथन होते हैं। यहाँ की जो भी मसल्स, जो भी हमारी बोन्स है, अगर वो काफी लंबे टाइम से बैठने से जो दब गई है या उनमें किसी तरीके का कोई पेन है, स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, तो क्या होगा कि हम जब लेंथन करते हैं अपनी स्पाइन को, डीपली इनहेल करते हैं, जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा लेंथन करते हैं, तो क्या होता है कि इनमें एक नई ऊर्जा आती है, और जब हम एक्सेल करते हुए कंप्लीटली फॉरवर्ड करते हैं, आगे की ओर झुकते हैं, तो जो भी हमारे यहाँ का स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, वो एक्सेलेशन के थ्रू बाहर की ओर निकल के जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपका हाथ आगे की ओर नहीं पहुंच रहा है, तो इसके लिए आप ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं। ब्लॉक्स को आगे रखिए, आर्म्स को ऊपर लेके जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए, और सांस छोड़ते हुए जहां भी आपका हाथ पहुंच रहा है वहां पे ब्लॉक को रखिए, और ब्लॉक को पकड़ते हुए अपनी स्पाइन को लेंथन करिए और आगे देखने की कोशिश करिए। अगर आपका चिन और फोरहेड मैट से नहीं लग रहा है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस यहाँ पे आप अपने ब्लॉक को पकड़िए, उसको आगे की ओर बढ़ाइए और अपनी बैक को कंप्लीटली रिलैक्स करते हुए आगे की तरफ देखते हुए यहाँ पे होल्ड करिए कुछ समय तक। और जब आप होल्ड कर रहे हैं तो उस समय आपको लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। ध्यान रखिए आपको आपकी ब्रीदिंग को कहीं भी होल्ड करके नहीं रखना है। यहाँ पे कुछ टाइम बाद होल्ड करने के बाद फिर से आप इनहेल करते हुए आर्म्स को ऊपर लेके आएंगे और अपने रिलैक्स करते हुए आर्म्स को अपनी बॉडी के साइड में रख दीजिए। अगर आपको इसमें बैठने में प्रॉब्लम है तो आप नॉर्मल सुखासन में बैठ करके, क्रॉस करके बैठ करके भी अपने आर्म्स को लेंथन करते हुए फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं, और किसी भी ब्लॉक का, बॉक्स का या फिर किसी और चीज का यूज करके भी आप चाइल्ड पोज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आसना जो है वो भी हमारे पूरे मसल्स को, फिजिकल हेल्थ और हमारे हैमस्ट्रिंग्स, काफ मसल्स, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हम अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आसना। नेक्स्ट आसन जो है वो है हमारा जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन क्या है कि उसमें हमें फॉरवर्ड बेंड करना है। हम आज जो है वो सारे कामिंग आसना परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कामिंग आसना जो है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन रोल प्ले करते हैं। कामिंग आसना नेक्स्ट है हमारा जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन करने के लिए क्या करना है, आपको आपके दोनों को पैरों को आगे स्ट्रेच करना है, पाम को आपको आपके बॉडी की साइड में रखना है, स्पाइन को लेंथन रखना है। मेक श्योर जो हमारे टोज हैं वो एक्टिव रहेंगे। एक्टिव मतलब होता है कि जो आपकी उंगलियां हैं पंजों की वो आपकी तरफ होंगी। अब आपको यहाँ पे आपके लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है, और जो आपकी लेफ्ट लेग की सोल है उसको आपको राइट थाई के बगल में रखना है। हल्का सा पैर को, अपने राइट पैर को राइट साइड में स्ट्रेच करिए। उसके बाद में अपने हिप को हल्का सा स्क्वायर करना है राइट साइड में। इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स को ऊपर लेके जाइए, और एक्सहेल करते हुए आपको आगे की ओर झुकना है। आगे की ओर झुक के
आप जहां भी पहुंच रहे हैं, काफ मसल्स पे, एंकल पे, टोज पे, आपको उसको प्रॉपरली इंटरलॉक करना है। अपनी स्पाइन कंप्लीटली लेंथन करते हुए आगे की ओर देखिए। अगर आप ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, आपकी बॉडी में स्पाइन ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आप अपनी चिन को और फोरहेड को अपने नी से या शिन बोन से लगा के एल्बो कंप्लीटली मैट पे रख सकें। अगर आप कहीं पे स्टेप हो रहे हैं, तो आपको दुपट्टे को अपने पैर के पीछे से फंसाना है और इसको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद फिर अपने एल्बो को बेंड करते हुए आगे फॉरवर्ड करना है। ध्यान रहे आपको आपकी बैक को हंच नहीं करना है, उसको पूरी तरीके से लेंथन रखना है। और अगर आपका चिन और फोरहेड जो है वो शिन बोन या नी पे नहीं लगता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। स्पाइन को लेंथन करिए और जहां पे आप होल्ड करें बस वहीं पे आपको आगे की ओर देखना है। यहाँ पे होल्ड करना है, फिर इंक्रीज करते हुए ऊपर आना है और इसको छोड़ देना है। सेम ही प्रैक्टिस हमें परफॉर्म करनी है दूसरे पैर से। तो क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले आपको लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करना होगा, लेग को शेक करना होगा ताकि जो भी मसल्स में स्ट्रेन आया है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। फिर आपको राइट लेग को बेंड करते हुए राइट हील की जो सोल है उसको आपको लेफ्ट थाई के बगल में रखनी है। लेफ्ट लेग को हल्का सा आपको स्ट्रेच करना है, ओपन करना है। फिर से आपको अपने दुपट्टे को लेफ्ट लेग के बाहर से फंसाना है और डीपली इनहेल करना है। इनहेल करते हुए आर्च को थोड़ा सा बैक करिए और एक्सहेल करते हुए अपनी एल्बो को बेंड करिए और अपने आप को आगे की ओर खींचना है। कोशिश करना है कि बैक जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रेट रहे और आप आगे की तरफ देखिए। यहाँ पे आपको अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है, प्रॉपर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ में आपको यहाँ पे रुकना है और थोड़ी देर बाद कॉन्शियस ब्रीदिंग करने के बाद फिर आपको एक्सहेल करते हुए ऊपर आना है और दुपट्टे को साइड में रख के पैर को दोनों स्ट्रेच करना है सामने, दंडासना में बैठना है, पाम को अपने बॉडी के साइड में रखना है और पैरों को शेक करना है ताकि जहाँ पे भी आपको स्ट्रेन आया है, स्ट्रेस आया है, वो रिलैक्स हो सके और आपके हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्रिसेप्स, काफ मसल्स इन सब का अच्छे से मसाज हो सके। तो ये थे हमारे कुछ सेट ऑफ आसनास जिनको हम स्ट्रेस के टाइम पे परफॉर्म करते हैं। अब हम इसमें आगे मूव करते हैं प्राणायामा की तरफ। जो हमारा फर्स्ट प्राणायाम है वो है शीतकारी प्राणायाम। तो जो प्राणायाम है वो हमारे अंदर नई जीवन ऊर्जा का प्रवाह करता है। जो भी हमारी नस नाड़ियां हैं, जो भी हमारे अंदर पे नस और नाड़ियां हैं जिनमें प्रॉपर ऑक्सीजन का, प्रॉपर ब्लड का, प्रॉपर ऊर्जा का प्रवाह नहीं है, तो प्राणायाम क्या करता है, उन सारी रक्त वाहिनियों को, उन सारी नस नाड़ियों को एक नई ऊर्जा देता है ताकि वो फिर से जीवित हो सके और उसमें नई ऊर्जा आ सके। इसलिए हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं। प्राणायाम बेसिकली हमें एक नया आयाम देता है, जीवन जीने की एक नई कला सिखाता है, जिससे हम क्या करते हैं कि उसमें हम ब्रीदिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। प्राणायाम बेसिकली है कि जो हमारी आती जाती श्वास प्रश्वास है उस पर कॉन्शियस होना, उस पर एकाग्रता रखना और उसको एक अच्छे तरीके से जो हमारी श्वास प्रश्वास है उसको हम प्रॉपर तरीके से लें और जो भी हमारी नस नाड़ियां, रक्त वाहियां हैं उन सबको नया जीवन प्रदान करें। तो मूव करते हैं प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हमारी इनिशियल प्रिपरेशन है कि आपको किसी भी सुखासन, पद्मासन, जिस ऐसा आसन आपको लगाना है जिसमें आप देर तक बैठ सकें और सुखपूर्वक बैठ सकें। उसके बाद में आपको अपनी बैक को पूरी तरीके से स्ट्रेट रखना है और शोल्डर को पूरी तरीके से रिलैक्स रखना है। पहला हमारा प्राणायाम है शीतकारी प्रैक्टिस। शीतकारी प्राणायाम में हमें क्या करना है, लेफ्ट पाम को चिन मुद्रा बनानी है जिसमें कि आपकी थंब और इंडेक्स फिंगर की जो अपर टॉप है वो एक दूसरे से टच रहेगा और जो हमारी 3 फिंगर्स हैं वो नेचुरली कट रहेंगी और बैक ऑफ पाम को हमें नीज पे रखना है। राइट हैंड से हमें प्रणव मुद्रा बनानी है जिसमें कि हमें अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर की जो टॉप है उसको हमें थंब की जड़ से लगा के रखना है और जो हमारी रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर है उसे हमें नॉर्मली ओपन रखना है। ये है हमारी नॉर्मल प्रोसेस। इसके बाद हमें क्या करना है,
कि शीतकारी प्राणायाम क्या है, एक कूलिंग प्रैक्टिस है। कूलिंग प्रैक्टिस जो कि हमारे माइंड को, बॉडी को कूल रखती है, पीस देती है। जो भी हमारे अंदर ज्यादा निगेटिव एनर्जी है उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठना है, बैक स्ट्रेट, शोल्डर कंप्लीटली रिलैक्स एंड योर बैक ऑफ palm on your knees in chin mudra और ज्ञान मुद्रा and 3 fingers naturally curved। फिर आपको आपके जो दांत हैं उनको एक दूसरे पे रखना है और जो दांतों के बीच में गैप है उनसे आपको इनहेल करना है, थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। जैसे कि अब प्रोसेस देखिए, आपके दांतों को एक दूसरे पे रखना है और इनहेल करना है। Deeply inhale, completely exhale। किसी भी पायरिया या फिर दांतों में सेंसेशन है, सेंसिटिविटी ज्यादा है, जो ज्यादा कूलिंग को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, वो ये प्रैक्टिस ना करें। इससे हो सकता है कि आपकी सेंसिटिविटी, सेंसेशन और आपके दांतों में अगर कीड़े हैं, पायरिया हो रखा है, तो उनके बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। जो पूरी तरीके से जिनकी टीथ हेल्दी है, जिन्हें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है रिलेटेड टू टंग और टीथ, वो इस प्रोसेस को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अपने दांतों के एक दूसरे के ऊपर रखें, दांतों को लिप्स को हल्का सा ओपन करें और दांतों के बीच में जो गैप है उनसे इनहेल करें। कंप्लीटली इनहेल करने के बाद अपने लिप्स को बंद करें और नॉस्ट्रिल के थ्रू हमें एक्सहेल करना है। ये प्रोसेस आप अर्ली मॉर्निंग किसी भी टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि अगर आपको ठंडी के फीवर आ रहे हैं या फिर आपकी को जो है वो सर्दी है, जुकाम है, तो आपको ये प्रोसेस अवॉइड करनी है। अगर आप फिजिकली प्रॉपर तरीके से हेल्दी हैं, देन आप इस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। आपको विंटर्स में शीतकारी प्राणायाम पूरी तरीके से अवॉइड करना है, क्योंकि शीतकारी एक कूलिंग प्रैक्टिस है जो हमारे बॉडी को, माइंड को पूरी तरीके से ठंडी प्रदान कर रही है। तो आप विंटर्स के टाइम पे भी इसे करने से अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन है हमारा अल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग। उसके लिए हमें क्या करना है, सेम हमें प्राणायाम वाली पोजीशन में बैठना है, बैक स्ट्रेट रहेगा, शोल्डर पूरी तरीके से रिलैक्स। जो हमारा चिन है वो पैरेलल रहेगा ग्राउंड के। लेफ्ट पाम जो है वो हमारा ज्ञान मुद्रा में रहेगा और राइट वाले से हमें प्रणव मुद्रा बनानी है। इसमें हमें अपने थंब का और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर का यूज करना है। सबसे पहले हमें अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से हमें इनहेल करना है, कंप्लीटली इनहेलेशन। उसके बाद में जो हमारी रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर है उसका यूज करते हुए हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और जो हमारा थंब है उसको हम हटा करके राइट नॉस्ट्रिल को ओपन करते हुए राइट साइड से हम एक्सहेल कर देंगे। फिर हम क्या, हमें सेकंड प्रोसेस में क्या करनी है, हमें राइट साइड से एक्सहेल करना है। थंब के सहारे से हमें राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और इनहेलेशन हमें, एक्सहेलेशन जो है वो हमें लेफ्ट साइड से करना है। जैसे कि राइट थंब से हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे हम लेफ्ट साइड से। अब थंब, इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के सहारे हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। थंब को हटाते हुए राइट नॉस्ट्रिल को ओपन करेंगे और राइट साइड से हम एक्सहेल करेंगे। फिर हम राइट साइड से एक्सहेल करेंगे। उसके बाद में जब प्रॉपर एक्सहेलेशन हो जाए तो हमें राइट साइड से इनहेल करना है। थंब का यूज करते हुए राइट नॉस्ट्रिल को हम बंद करेंगे और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को हटाते हुए लेफ्ट साइड से हमें एक्सहेल करना है। तो ये होगा हमारा एक राउंड। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि प्रणव मुद्रा से थंब के सहारे पहले हमने राइट को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल किया। उसके बाद में हमने रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर का यूज करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया और राइट से एक्सहेल किया। देन फिर हम राइट से इनहेल कर रहे हैं, थंब का यूज करके हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर रहे हैं और लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल से हम फिर से एक्सहेल कर रहे हैं।
तो ये होता है एक राउंड। इसे हम डेली स्टार्टिंग में हम 3 राउंड या 5 राउंड से हम स्टार्ट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे डे टू डे लाइफ में कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस के चलते हुए हम इसे 10 राउंड्स 20 राउंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपकी कैपेसिटी और स्ट्रेंथ और एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप एक अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग को कितने ज्यादा लेवल तक ले जा सकते हैं, कितने ज्यादा साइकिल और स्टेप्स को कर सकते हैं। ये हुई प्राणायाम की बात। फिर आगे मूव करते हैं कि हम अपने मसल्स को रात में लेटते समय या जब भी हम फ्री हैं और लेटे हुए हैं तो हम किस तरीके से अपनी मसल्स को कंप्लीटली रिलैक्स कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है हम अपने डिफरेंट मसल्स पे डिफरेंट तरीके का स्ट्रेन और स्ट्रेस फील करते हैं, जिसे हम रिलीज कई तरीके से करना चाहते हैं, मालिश करके, ऑयलिंग करके, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो बात करते हैं, नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन में क्या होता है, हम अपने आप को, हमारे जो खुद के थॉट्स हैं, हम उनके थ्रू ही अपनी बॉडी की मसल्स को रिलैक्स करते हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं टो से हेड तक। इसमें क्या होता है कि हम अपने आप से ये सेल्फ गाइडेड, इसे हम एक तरीके से सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसमें कि हम खुद को ये अपने आप को ही इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमारी जो मसल्स हैं उन्हें हम किस तरीके से रिलैक्स करें। तो आपको क्या करना है, इसके लिए पूरी तरीके से बेड पे लेट जाना है, फीट में आपको हिप डिस्टेंस रखना है, पाम को फेसिंग रहेगा आपका टुवर्ड्स स्काई, बैक कंप्लीटली रिलैक्स, आईज क्लोज, बॉडी रिलैक्स। अब आपको इसमें स्टार्ट करना है आपके फीट से। आपको सबसे पहले अपने फीट को, दोनों उंगलियों, पैरों के दो पंजों की दोनों उंगलियों को टाइट रख करना है और खुद से इंस्ट्रक्ट करना है दैट मसल्स जो है हमारी पंजों की, वो बहुत इस तरीके से क्या है, मसल को हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। डीपली इनहेल और फीट की मसल्स को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया। एक्सहेल करते हुए हमें फोर्सफुली जो हमारी फीट की मसल्स है उन्हें रिलैक्स करना है। सेम ऐसे ही हम अपनी काफ मसल्स, थाइज, एब्डोमेन, चेस्ट, देन नेक, फेशियल मसल्स को हम ऐसे ही रिलैक्स करते हैं। जैसे कि अगर आपको आपकी फिंगर्स को रिलैक्स करना है तो आप कैसे करेंगे, प्रॉपर आपको क्या करना है, एक मुट्ठी बनानी है, आपकी जो थंब रहेगा वो अंदर की तरफ रहेगा। डीपली इनहेल करते हुए आपको अपने थंब को, मसल्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है और डीपली इनहेल करना है, और एक्सहेल करते हुए फोर्सफुली आपकी फिंगर्स को स्प्रेड करना है। ये प्रोसेस हम 3 से 4 बार कर सकते हैं, जैसे कि इनहेल, engage your muscles, exhale, relax। ये एक सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन है जिसमें कि हम अपने आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं और अपनी जो भी हमारी मसल्स हैं उनको हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के थ्रू उन्हें हम प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि 10 से 15 मिनट बाद आपको एक नई एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसमें कि आप देखेंगे कि आपका जो भी फिजिकल स्ट्रेन है, जो कि आप फिजिकली अनस्टेबल थे या आपके बॉडी में कहीं पे भी कोई भी पेन हो रहा था, कोई भी मसल प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था, उस जगह पे आपको थोड़ी 10 से 15 मिनट के परफॉर्म करने के बाद आपको एक अलग सा रिलैक्सेशन और आपको एक पीस मिलेगा, जिसमें कि आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो कामनेस में जाती है और आपको उसके बाद जो भी आप वर्क करेंगे उसमें आपको एक नई एफिशिएंसी और एक नया पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है। लास्ट है जो कि वो है टेक्निक है, वो बैकवर्ड काउंटिंग की है। जैसे कि हम जैसे सबको पता है कि हमारे एक दिन में 20,000 से एवर थॉट्स हमें आते हैं, इतने ज्यादा थॉट्स आते हैं कि शायद हम उन्हें फिल्टर भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे, और जिसमें से 80% 85% निगेटिव थॉट्स होते हैं जो कि हमें एक डिफरेंट तरीके का स्ट्रेस देते हैं। कुछ ही ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देते हैं। तो हम निगेटिव थॉट्स को किस तरीके से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और उनको हम कैसे स्किप कर सकते हैं, उसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय है बैकवर्ड काउंटिंग। आप कहीं पे भी हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, अगर आपको आपको मेंटल पीस लेके आना है, आपको क्विक एक रिस्पॉन्स चाहिए कि हाँ आप किस तरीके से अपने मेंटल हेल्थ को सही कर सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस से दूर हो सकते हैं, तो आप वहीं पे आंख बंद करिए, अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स करिए, बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करिए। 50, 49, 48, आप देखेंगे जैसे आप 40 तक या 35 तक आएंगे, वैसे ही एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पे आपको आपका वो थॉट आपकी काउंटिंग पे हावी हो जाएगा, आप आगे
काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जब वो आपको थॉट वहां पे आके आपको ओवरलैप कर रहा है, आपकी काउंटिंग को स्किप करा रहा है और वो निगेटिव थॉट्स आपके ऊपर फिर से हावी हो रहा है, तो फिर से आप सडन अपने ब्रेन को एक रिस्पॉन्स दीजिए कि नहीं, हमें एक जगह पे फोकस रहना है, कॉन्सेंट्रेट करना है और हमें जो भी ये नेगेटिव थॉट्स है उन्हें स्किप करना है। इसके लिए आपको फिर से 35 से काउंट नहीं करना है, आपको फिर से रीस्टार्ट करना है 50 से। फिर से आप 50 से 49, 48 तक जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप अपने माइंड को खुद जो है वो ट्रेन कर रहे हैं, एक नए पॉजिटिव चेंज की तरफ लेके जा रहे हैं। इसके लिए आप बेहतरीन ये भी कर सकते हैं कि आप कोई भी एक थॉट ले लीजिए, जैसे जो भी आपको थॉट पसंद हो, ज्यादा नहीं, छोटा सा ही थॉट लीजिए, जैसे कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, या सेल्फ के लिए जो भी आपको थॉट लेना है, एक थॉट लीजिए और उस पर दिन भर विचार करिए कि अगर ये वाला थॉट है तो उस थॉट में और क्या क्या चीजें अच्छी आ सकती हैं, उनको आप फिल्टर करने की कोशिश करिए। तो इससे क्या होगा कि जो आपके निगेटिव थॉट्स हैं वो धीरे धीरे उनका ग्राफ नीचे होता हुआ चला जाएगा और जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे और इनहेंस होगी। एट द एंड मैं कंक्लूड करूंगी तो इस पे कि जो भी ये आसनास की प्रैक्टिसेस हैं, जो भी हमने परफॉर्म किया, सूर्य नमस्कार, प्राणायामा, आसनास प्रैक्टिस, मेडिटेशन, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, इन सबको आप, इन सबका रिजल्ट आप तब तक नहीं ले सकते जब तक आप इनको अपनी डे टू डे लाइफ में लेके नहीं आएंगे। और ये हमारे पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लॉकडाउन पीरियड में कि हम अपनी अंदर एक नई स्किल को लेके आए, एक नई स्किल को हम अपने अंदर डेवलप करें और अपने आप के जो हमारा डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब है, जो हमारा रूटीन डिस्टर्ब है, उसको हम फिर से शेड्यूल करें और उसमें हम कहीं ना कहीं इन योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, इन सबको थोड़ा सा स्पेस दें। जब आप देखेंगे, जब आप इन सब की डेली प्रैक्टिस करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपके अंदर पॉजिटिव थिंग्स है, आपकी स्किल्स है, एबिलिटी है, उनका ग्राफ धीरे धीरे अपने आप इनहेंस होता चला जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा और जो भी आपके स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, इन सब का ग्राफ अपने आप लो होता हुआ चला जाएगा। और जब भी आप 15-20 डेज के बाद आप देखेंगे तो आपके अंदर खुद एक पॉजिटिव चेंज आएगा जिसको आप शायद इवन इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन एक ऐसी चेंजेस लेके आता है जो हमें धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद पता चलता है, हम उसका रिजल्ट क्विक नहीं देख सकते हैं। जैसे खाना खाया और उसका टेस्ट नहीं लिया, ध्यान, प्राणायाम, आसन, इन सारी प्रैक्टिसेस का जो रिजल्ट है वो थोड़े टाइम बाद आता है, लेकिन जब वो आता है तो हमारे अंदर एक नए तरीके का इंथुजियाज्म, एक नए तरीके का पॉजिटिव चेंज, एक नए तरीके की ऊर्जा लेके आता है जो कि शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो एट द एंड आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इन आसनास को, प्राणायाम को, ध्यान को, मेडिटेशन को अपनी लाइफ में थोड़ी सी स्पेस दीजिए और जो भी ये लॉकडाउन ऑफ पीरियड है इसमें अपने इन स्किल्स को और डेवलप कीजिए, इनकी कॉन्टिन्यूटी बना के रखिए, क्योंकि अगर हम डेली डेली किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो वो हम उसके फिर हैबिचुअल हो जाते हैं। तो जब हमारी लाइफ रूटीन फिर से फॉलो की जाएगी, हम फिर से उसमें स्टार्ट करेंगे, फिर से हम जब उसमें आएंगे अपने डे टू डे वर्किंग बेस में, तो आपकी जो ये डे टू डे लाइफ में जो ये प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व है उन्हें आप कभी स्किप नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं, बल्कि उनको एक स्पेशल स्पेस देंगे कि हमें रोज सुबह उठ करके इन चीजों को परफॉर्म करना है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी आसनास को परफॉर्म करें, इन सारी चीजों को आप अपनी डे टू डे लाइफ में लेके आए, इनमें कॉन्टिन्यूटी बना के रखें, आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहा है। नाउ मैं टेक ओवर करूंगी नीलांचल को कि वो और आगे के बारे में आप सबको विस्तार से बताएं। थैंक यू अदिति, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल योगा सेशन। इसमें जो भी आपने हमें जानकारियाँ दी, जो भी आपने हमें बताया, वो अनडाउटेडली सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और मुझे उम्मीद है जितने भी लोग हमें इस जूम के थ्रू, इस कॉन्फ्रेंस, इस वेबिनार के थ्रू यहाँ देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, वो ज़रूर इन चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे और जो स्ट्रेस की अभी कंडीशन है, जो स्थिति है, उसको वो बेहतर करेंगे। अगला जो हमारा राउंड है, जो सेशन है, उसको करने से पहले जो क्वेश्चन आंसर है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए। और मैं ये आप सभी को बता दूं कि जो हमारे पास जितने भी स्पीकर हैं, ये भारत के विभिन्न जगहों से हैं। और जो हमारे कल के सेशन के मुख्य अतिथि हैं, जो चीफ स्पीकर हैं कल के, संजीव कुमार यादव सर, वो नेपाल से हम लोगों को यहाँ पे एड्रेस करेंगे और योग निद्रा का सेशन स्पेशली हमें देंगे। प्रैक्टिकल सेशन है,
थ्योरेटिकल सेशन है, इसमें ज़रूर आप इसमें भाग लें। और जो आज का सेशन था इसमें स्मृति मैम जमशेदपुर से इन्होंने हमें एड्रेस करा, और अदिति लखनऊ से अभी हम सभी को यहाँ पर योगा सेशंस को दे रही थी। थैंक यू सो मच स्मृति मैम एंड अदिति मैम। और आगे के सेशन में बढ़ने से पहले हमारे पास जो भी स्पीकर हैं वो रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं उनको यहाँ से रीड आउट कर रहा हूँ, आप लोग उनको जवाब देने का ट्राई करें। यहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है सुषमा मांझी मैम का है, जो पूछ रही है कि हाउ कैन आई स्पीक टू एंड हेल्प समवन विद अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम लाइक एंजाइटी और डिप्रेशन। ये शायद प्रश्न स्मृति जी से है, तो स्मृति इसका कम शब्दों में आराम से आप इनका जवाब दें। सुषमा मैम। हाँ स्मृति, आप जवाब दे सकती हैं, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। ओके, थैंक यू नीलांचल, थैंक यू